اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اے لیولز کا افسانہ شروع کرنے لگے ہیں، گرم کوٹ، جس کے رائٹر ہیں، مصنف ہیں جس کے راجندر سنگھ بیدی۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو چلیے، گرم کوٹ، راجندر سنگھ بیدی۔ میں نے دیکھا ہے میراج دن ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بہت عمدہ سوٹ آویزاں ہوتے ہیں۔ اچھا بچوں، گرم کوٹ ہم شروع کر رہے ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی اس کے مصنف ہیں۔ میں نے دیکھا ہے میراج دن ٹیلر ماسٹر کی دکان پر بہت عمدہ سوٹ آویزاں ہوتے ہیں۔ آویزاں لٹکے ہوئے، کان کو بھی جھمکے کو بھی آویزہ کہتے ہیں کیونکہ وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ تو آویزاں ہوتے ہیں، لٹکے ہوتے ہیں۔ کنڈیوں پہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، درزی کی دکان پہ۔ انہیں دیکھ کر اکثر میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میرا اپنا گرم کوٹ بالکل پھٹ گیا ہے، اور اس سال ہاتھ تنگ ہونے کے باوجود مجھے ایک نیا گرم کوٹ ضرور سلوانا چاہیے۔ ظاہر ہے سردی کی شدت بڑھتی ہے تو سب کو ہی کوئی نہ کوئی چیز، یا جن کے گھر الماریاں بڑی ہوتی ہیں ان کو بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں، تو میں نے وہ والی جیکٹ ضرور خریدنی ہے، وہ سویٹر۔ تو ہر انسان کو، امیر ہو یا غریب، موسم بدلنے کے ساتھ کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ٹیلر ماسٹر کی دکان کے سامنے سے گزرنے یا اپنے محکمے کی تفریح کلب میں جانے سے گریز کروں تو ممکن ہے مجھے گرم کوٹ کا خیال بھی نہ آئے، کیونکہ وہ جس محکمے میں کام کرتا ہے وہاں ایک تفریح کلب ہے، وہاں سارے دوست مل کر بیٹھتے ہیں آپس میں، تو لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں۔ تو کہتا ہے اگر میں وہاں نہ جاؤں تو مجھے گرم کوٹ کا خیال بھی نہ آئے، کیونکہ لوگوں کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے۔ کیونکہ کلب میں جب سنتا سنگھ اور یزدانی کے کوٹوں کے نفیس واسٹرڈ میرے سمندر تخیل پر تازیانہ لگاتے ہیں تو میں اپنے کوٹ کی بوسیدگی کو شدید طور پر محسوس کرنے لگتا ہوں، یعنی وہ پہلے سے کہیں زیادہ پھٹ گیا ہے۔ بیوی بچوں کو پیٹ بھر روٹی کھلانے کے لیے مجھ سے معمولی کلرک کو اپنی بہت سی ضروریات ترک کرنا پڑتی ہیں، ترک کرنا، چھوڑنا، اور انہیں جگر تک پہنچتی ہوئی سردی سے بچانے کے لیے خود موٹا جوٹا پہننا پڑتا ہے، یعنی موٹا پرانا، کوئی موٹا کپڑا لے لیا، جوٹا پرانا کسی کا پہنا ہوا۔ یہ گرم کوٹ میں نے پچھلے سال دہلی دروازے سے باہر پرانے کوٹوں کی ایک دکان سے مول لیا تھا۔ مول لینا، خریدنا۔ کوٹوں کے سوداگر نے پرانے کوٹوں کی سینکڑوں گانٹھیں کسی مرانج اینڈ کمپنی کراچی سے منگوائی تھیں۔ میرے کوٹ میں نقلی سلک کے استر سے بنی ہوئی اندرونی جیب کے نیچے مرانجا کو کا لیبل لگا ہوا تھا، یعنی کوئی برانڈ ہوگا، مگر کوٹ مجھے ملا بہت سستا، یعنی برانڈڈ تھا لیکن مجھے بہت سستا مل گیا۔ مہنگا روئے ایک بار، سستا روئے بار بار، یعنی مہنگی چیز آپ خریدتے ہیں تو وہ پائیدار ہوتی ہے، سستی خریدتے ہیں تو وہ بار بار پوسیدہ ہوتی رہتی ہے اور اس کو مرمت کرنا پڑتا ہے، اور میرا کوٹ ہمیشہ ہی پھٹا رہتا تھا۔ اسی دسمبر کی ایک شام کو تفریح کلب سے واپس آتے ہوئے ارادتاً انارکلی سے گزرا۔ اس وقت میری جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا۔ آٹا، دال، ایندھن، بجلی، بیمہ کمپنی کے بل چکا دینے پر میرے پاس وہی 10 روپے کا نوٹ بچ رہا تھا۔ جیب میں دام ہو تو انارکلی سے گزرنا معیوب نہیں، یعنی کوئی ایسی ایپ کی بات نہیں ہے۔ اگر پیسے ہوں آپ کے پاس تو انارکلی، آپ کو پتہ ہے، آج تک چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور فریش چیزوں سے۔ اس وقت اپنے آپ پر غصہ بھی نہیں آتا۔ جب آپ کی جیب میں پیسے ہوں تو آپ کو کسی بات پر غصہ نہیں آتا، بلکہ اپنی ذات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت انارکلی میں چاروں طرف سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے، اور ساڑیاں۔ چند سال سے ہر نتھو خیرہ سوٹ پہننے لگا ہے۔ میں نے سنا ہے گزشتہ چند سال میں کئی ٹن سونا ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ جسمانی زیبائش کا خیال بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے جنہوں نے نکالا ہوگا، جنہوں نے مزدوری کی ہوگی، جنہوں نے بیچا ہوگا، تو ان سب کے پاس پیسے آ گئے ہیں، تو اس لیے لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا، کپڑے خرید کر اپنے اوپر پہن لیے ہیں۔ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے لوگ شاید کپڑے زیادہ پہن رہے ہیں، اپنے آپ کو سجانے کی کوشش۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ سجاوٹ کا دھیان رکھتا ہے، جس کے پاس کم ہے وہ آرام کا خیال رکھتا ہے۔ ورنہ جو لوگ سچ مچ امیر ہیں ایسی شان و شوکت اور ظاہری تکلفات کی چندہ پرواہ نہیں کرتے۔
चंदा परवाह नहीं करते, बिल्कुल परवाह नहीं करते। जो दिल के अमीर होते हैं, चाहे वो महलों में रहें, उनके 5-500 गाँव हों, तो वो भलाई के कामों में लगे रहते हैं। उनको कोई नहीं होता, जो काम करने चाह रहे होते हैं ना, उनके पास जितना मालो-दौलत हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ पड़ा है, क्या है, वो काम की लगन में लगे रहते हैं। और जिनको थोड़ा बहुत पैसा मिल गया, तो वो आपस में देखते हैं कि फलाँ ने इस तरह के कपड़े पहने, तो वो उसमें लग लग जाते हैं। यानी छोटी सोच का बताया हुआ है कि सोच इंसान की कितनी अमीर होना ज़रूरी है। तो जिनके पास सैकड़ों गाँव हैं, वो अपने कपड़ों की परवाह नहीं करते, वो ज़ाहिरी शान-ओ-शौकत की परवाह नहीं करते। कपड़े की दुकान में वस्त्र के थानों के थान खुले पड़े, ये कोई कपड़े का नाम है बच्चों। इन्हें देखते हुए मैंने कहा, क्या मैं इस महीने के बचे हुए 10 रुपयों में से कोट का कपड़ा खरीद कर बीवी बच्चों को भूखा मारूँ? लेकिन कुछ अरसे के बाद मेरे दिल में नए कोट के नापाक ख़्याल का रद्द-ए-अमल शुरू हुआ। मैं अपने पुराने गर्म कोट का बटन पकड़कर इसे बल देने लगा। चूँकि तेज़-तेज़ चलने से मेरे जिस्म में हरारत आ गई थी, गर्मी पैदा हो गई। तेज़ चलने से आपको पता है, ठंड नहीं लगती। इसलिए मौसम की सर्दी और इस किस्म के ख़ारिजी असरात मेरे कोट खरीदने के इरादे को पाया तकमील तक पहुँचाने से कासिर रहे, नाकाम रहे, ना मुझे इतना मजबूर ना कर सके कि मैं कोट खरीद लूँ। यानी कि वो इस इरादे में कामयाब नहीं हुए, जो मैंने सोचा था कि मुझे इस साल कोट खरीदना है। तो वो नाकाम रहे, कासिर रहे, ना कर सके। मुझे तो इस वक़्त अपना कोट भी सरासर तकल्लुफ़ नज़र आने लगा। ज़ाहिर है जिस्म गर्म हो चुका था, तो वो कोट ज़ाहिर है जैसे हम गर्म होते तो आप गर्म कपड़े उतार देते। ऐसा क्यों हुआ? मैंने कहा, जो शख्स हकीकतन अमीर हो, वह ज़ाहिरी शान-ओ-शौकत की चंदा फ़िक्र नहीं करते। ये ऊपर वाला नज़रिया, ये चंदा परवाह नहीं करते। जो लोग सचमुच अमीर हों, उन्हें तो फटा हुआ कोट बल्कि कमीज़ भी तकल्लुफ़ में दाख़िल समझनी चाहिए। तो क्या मैं सचमुच अमीर था कि मैंने घबरा कर ज़ाती तजिया छोड़ दिया और बमुश्किल 10 का नोट सही सलामत लिए घर पहुंचा। शम्मी मेरी बीवी मेरी मुंतज़िर थी। आटा गूंथते हुए उसने आग फूंकनी शुरू कर दी। कमबख्त मंगल सिंह ने इस दफ़ा लकड़ियाँ गीली भेजी थीं। लकड़ियाँ जिस जहाँ से लकड़ियाँ आती थी उसका नाम है मंगल। आग जलने का नाम ही नहीं लेती थी। ज़्यादा फूंक के मारने से गीली लकड़ियों में से और भी ज़्यादा धुआं उठा। शम्मी की आंखें लाल अंगारा हो गईं। अंगारा उस सुर्ख रंग का दहकता हुआ कोयला। उनसे पानी बहने लगा। कमबख्त कहीं का मंगल सिंह! मैंने कहा, मैं इन आँखों के लिए मंगल सिंह को तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊँ। बहुत तगो-दो के बाद, यानी बहुत कोशिश के बाद, लकड़ियाँ आहिस्ता-आहिस्ता चटकने लगीं। आखिर उन पुरनम आँखों के पानी ने मेरी गुस्से की आग बुझा दी। यानी बेगम की आंखों में पानी देखा, तो उसको जो गुस्सा आ रहा था, वो बुझ गया और दूसरी बातों में मशगूल हो गया। शम्मी ने मेरे शाने पर सर रखा और मेरे फटे हुए कोट में पतली-पतली उँगलियाँ दाखिल करती हुई बोली, अब तो ये बिल्कुल काम का नहीं रहा। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, सी दूँ? यहाँ से सी दो। अगर कोई एक आध तार निकाल कर रफ़ू कर दो तो क्या कहने। वो कोट के ही अंदर से एक कोई तार खींचकर, जो उसकी हमरंग होती, उससे रफ़ू कर दिया जाता है। रफ़ू करना, फटे हुई जगह को सिलाई करना। कोट को उल्टाते हुए शमी बोली, अस्तर को तो मुई टिड्डियाँ चाट रही हैं। अस्तर होता है अंदर कपड़े के कोट के अंदर, आपने देखा होगा एक रेशमी किस्म का कपड़ा लगा होता है, उसको अस्तर कहते हैं। मुई टिड्डियाँ चाट रही हैं, यानी घर में ज़ाहिर है टिड्डियाँ वगैरह होती हैं, तो वो खा जाती हैं, जो नकली चीज़ होती है। नकली रेशम का है ना, ये देखिए, असली रेशम नहीं खा सकती वो। मैंने शम्मी से अपना कोट छीन लिया और कहा, मशीन के पास बैठने की बजाय तुम मेरे पास बैठो शम्मी। देखती नहीं हो दफ्तर से आ रहा हूँ। ये काम तो इस वक्त कर ले ये काम तुम उस वक्त कर लेना जब मैं सो जाऊँ। शमी मुस्कुराने लगी। वो शमी की मुस्कुराहट और मेरा फटा हुआ कोट। शमी ने कोट को खुद ही एक तरफ रख दिया। वो बोली, मैं खुद भी इस कोट की मरम्मत करते-करते थक गई हूँ। इसे मरम्मत करने में इस गीले ईंधन को जलाने की तरह जान मारनी पड़ती है। आँखें दुखने लगती हैं। आखिर आप अपने कोट के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदते? मैं कुछ देर सोचता रहा। यूँ तो मैं अपने कोट के लिए कपड़ा खरीदना गुनाह ख़्याल करता था, मगर शम्मी की आँखें, इन आँखों को तकलीफ़ से बचाने के लिए मैं मंगल सिंह तो क्या, तमाम दुनिया से जंग करने पर आमादा हो जाऊँ। वस्टर्ड के थानों के थान खरीद लूँ। नए गर्म कोट के लिए कपड़ा खरीदने का ख़्याल दिल में पैदा हुआ ही था कि पुष्पामणि भागती हुई कहीं से आ गई, बेटी उसकी। आते ही बरामदे में नाचने और गाने लगी। इसकी हरकत कथकली मद्रा से ज़्यादा कैफ़ अंगेज़ थीं। कोई वो होगी डांसर।
मुझे देखते ही पुष्पा मनी ने अपना नाच और गाना ख़त्म कर दिया, बोली, बाबूजी आप आ गए, आज बड़ी बहन जी उस्तानी। उस्तानी को बड़ी बहन जी कहते थे। ने कहा है मेज़ पोश के लिए 2 सूती लाना। 2 सूती कपड़ा होता है एक, जिसके 2 धागे में क्रॉस बनाते हैं ऐसे यूँ करके। 2 सूती लाना और गरम कपड़े पर काट कर, और गरम कपड़े पर काट सिखाई जाएगी, यानी कटिंग सिखाएँगे। गुनिया माप के लिए, गुनिया स्केल और गरम कपड़ा। चूँकि उस वक़्त मेरे गरम कोट खरीदने की बात हो रही थी, शम्मी ने ज़ोर से एक चपेट उसके मुँह पर लगाई और बोली, इस जन्मजली को हर वक़्त कुछ न कुछ खरीदना ही होता है। मुश्किल से इन्हें कोट सिलवाने पर राज़ी कर रही हूँ, वो पुष्पमणि का रोना और मेरा नया कोट। यानी उसके ज़हन में 2-2 चीज़ें मतवातर चल रही हैं। पहले बीवी की आँखों में आँसू और कोट, और बीवी की आँखों का सिलाई करके जलना और कोट, और अब बच्ची का रोना और कोट। मैंने खिलाफ़े आदत ऊँची आवाज़ में कहा, शम्मी। शम्मी काँप गई। मैंने गुस्से से आँखें लाल करते हुए कहा, मेरे इस कोट की मरम्मत कर दो, अभी किसी तरह करो। ऐसे जैसे रो पीट कर मंगल सिंह की गीली लकड़ियाँ जला लेती हो। तुम्हारी आँखें? हाँ, याद आया। देखो तो पुष्पामणि कैसे रो रही है। पॉपी बेटा इधर आओ। पॉपी बेटा इधर आओ ना। इधर आओ मेरी बच्ची। क्या कहा था तुमने? बोलो तो। 2 सूती, गुनिया माप के लिए, गुनिया स्केल, ओवर को और काट सीखने को गरम कपड़ा। काट यानी पे कटिंग के लिए। बच्चों नन्हा सा भी बच्चू नन्हा भी तो ट्राईसाइकिल का राग अलापता और गुब्बारे के लिए मचलता सो गया होगा। इसे गुब्बारा न ले दोगी तो मेरा कोट सिल जाएगा, है ना? कितना रोया होगा बेचारा। शम्मी, कहाँ है बच्चों? जी सो रहा है, शम्मी ने सहमे हुए जवाब दिया। अगर मेरे कोट के लिए तुम इन मासूमों से ऐसा सलूक करोगी तो मुझे तुम्हारी आंखों की परवाह ही क्या है? फिर मैंने दिल में कहा, क्या ये सब कुछ मेरे गरम कोट के लिए हो रहा है? शम्मी सच्ची है या मैं सच्चा हूँ? पहले मैंने कहा, दोनों। मगर जो सच्चा होता है इसका हाथ हमेशा ऊपर रहता है। मैंने खुद ही दबते हुए कहा, तुम खुद भी तो इस दिन काफूरी रंग के मीनाकार कांटों के लिए कह रही थी। हाँ जी, कह तो रही थी, मगर उस वक्त तो मुझे अपने गरम कोट की जेब में 10 रुपए का नोट एक बड़ा खजाना मालूम हो रहा था। ये बच्चों आज जितना ही करते हैं, इंशाल्लाह फिर दोबारा पढ़ेंगे आगे। अभी आपने देखा है कि एक गरीब घराने का क्लर्क जो है, वो अपने बच्चों के साथ और अपनी बेगम के साथ किस तरह से मतलब मौसम के बदलाव के साथ गर्म कोट की ख़रीदारी के बारे में कितना सोच विचार कर रहा है। तो इसी तरह जो माशरती मसाइल होते हैं, हमारे मुसन्निफ़ीन उन पर, और राजेंद्र सिंह बेदी भी उसी एक नाज़ुक इशू को लेकर, एक नाज़ुक मसले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि गुर्बत जो है वो इंसान की बहुत सी चीज़ों को पीछे कर देती है, और मसाइल जो हैं वो आगे आ जाते हैं। ज़रूरतें पीछे रह जाती हैं और दूसरे मसाइल मुँह उठाकर खड़े हो जाते हैं, और उनको हल करना लाज़मी होता है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं ये उसके 10 रुपए नया कोट ख़रीदने में मददगार साबित होते हैं या फिर ज़रूरतें पूरी होती हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।